Hello students, this is Sapna Sang from Seth Prakash Polytechnic Damla, and today's topic is differential equation. Definition: differential equation and differential equation containing y and its derivatives is called differential equation. That means any expression which consists of y and derivatives of y. In this example, you can see y, first derivative is dy by dx, second derivative is d square y upon dx square. And this expression, because it has y and its derivatives, is called differential equation, where y is the function of x, means y depends on x, or y is written with the help of variables. Okay, next, types of differential equation. There are two types of differential equation. One is ordinary differential equation and the other is partial differential equation. What is the difference between these two? In the first type, yani ordinary differential equation, y only depends on one variable. You can see y equal to f of x means y only depends on the variable x. Whereas in partial differential equation, y depends on two or more variables, right? That's why z is depending upon x and y. Correct? This is an example in which z depends on two variables, that is x and y. So in first type, y and its derivative, that's why it is called differential equation. लेकिन किस तरह की differential equation है ये? Ordinary differential equation. But in second example, z depend upon two variable x and y. So that's why this is called partial differential equation, and partial derivatives written with the help of curly square z upon curly x square plus 3 curly square z upon curly y square equal to 0. So I think you all comes to know what is the difference between ordinary differential equation or a partial differential equation. So I repeat, a differential equation in which y depends on one variable is called ordinary differential equation. Example is d square y upon dx square plus 7y equal to 0. Whereas in partial differential equation, y depends on two or more variables, and in the example you can see here z variable depends upon x and y. Correct? That's why the differential equation is of the form curly square z upon curly x square plus 3 curly square z upon curly y square equal to 0. Next, ordinary differential equation is of two types. One is linear differential equation and other is non-linear differential equation. You can see this in the slide, the linear differential equation and the non-linear. So first of all, we must know what do you mean by the linear word. So linear means any expression in which the variable has a degree 1. All the variable has degree 1. So linear differential equation is what? A differential equation in which y and its derivative have power 1. So in this example you can see d square y upon d cube y upon dx cube plus 5 d square y upon dx square
plus dy by dx plus 3y equal to 0. Here y dy by dx, d square y upon dx square and d cube y upon dx cube all have power 1. Whole power जो है इन सबकी individual power that is 1. That is why it's a linear equation. Next, non-linear differential equation. A differential equation in which any of the y and its derivative have power more than 1. यानी हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें y या उसके डेरिवेटिव में किसी की भी पावर एक से ज़्यादा हो जाएगी तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं नीचे वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स 4 प्लस 5 डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र होल पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं सेकेंड डेरिवेटिव की पावर एक से ज़्यादा होगी यानी 2, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? सो द नंबर ऑफ highest derivative in a differential equation is the order of differential equation। यानी y को मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया है उसका नंबर जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर को दिखाता है। इन प्रेजेंट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस 5x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 7y इक्वल टू 0। इसमें y को 2 बार मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ? 2 बार, इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, बिकॉज y इज डिफ्रेंशिएटेड 2 टाइम्स विच इज मैक्सिमम। ठीक है, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हैं जो सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में y को मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है? तो आप देख रहे हो यहाँ पे y को कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है? 4 बार। ठीक है, इसलिए फिर इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4। अनदर एग्जाम्पल dy over dx plus 7y equal to 0। In this example, y only differentiated once, so order is 1. So I think everyone comes to know what is the order of differential equation. Next is degree of differential equation. So it is the power of highest derivative exists in a differential equation when it is free from fractional powers। yes, कोई भी differential equation करेक्ट जिसकी कोई भी differential equation जिसके highest derivative की पावर जो है that represent the degree of differential equation। लेकिन उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसमें कहीं भी पावर फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए। अगर फ्रैक्शनल पावर है तो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव दैट पावर। क्लियर? तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इट इज़ द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो लेट अस सी एग्जांपल। तो आप इसमें देख रहे हैं डी की पावर 4 वाई अपॉन डी एक्स 4 प्लस 5x डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र होल पावर 3 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0। इन दिस होल इक्वेशन फर्स्ट देयर इज नो फ्रैक्शनल पावर। इस सारे में कहीं कोई फ्रैक्शनल पावर नहीं है। पहली चीज़ हमने ये ऑब्जर्व करनी है। सेकेंड थिंग, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है? y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है? 4 बार। तो इसी की होल पावर हम देखेंगे क्या है। अब क्योंकि इसकी होल पावर 1 है तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1।
Let us take one more example. सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं d4y/dx4 होल पावर 6 प्लस 5x d²y/dx² होल पावर 3 प्लस dy/dx प्लस 3y इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है 4, क्योंकि y को कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है 4 बार। ओके, और इसकी क्योंकि यह हाईएस्ट डेरिवेटिव है तो इसी की होल पावर देखेंगे तो दैट इज 6, करेक्ट। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी 6, और इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी जो है वो फ्रैक्शनल पावर नहीं है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 6। लेट अस टेक नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इन विच you can find order and degree of differential. Here is a question. Find the order and degree of differential equation. Under root of 1 plus d²y/dx² is equal to dy/dx. अब इस एक्सप्रेशन में हमें ऑर्डर बताना बहुत आसान है, राइट, क्योंकि हमें साफ नज़र आ रहा है y जो है वो 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा 2। बट फॉर डिग्री फर्स्ट वी हैव टू रिमूव दिस फ्रैक्शनल पावर विच इज़ अंडर रूट, और अंडर रूट क्या होता है पावर 1/2। सो फर्स्ट स्टेप इज फर्स्ट रिमूव द फ्रैक्शनल पावर बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने स्क्वेयरिंग किया तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट, बिकॉज सारे का अंडर रूट है और सारे की होल पावर 2 है, करेक्ट। तो लेफ्ट साइड से स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और राइट साइड जो है होल स्क्वायर बन जाएगा। अब जो नई हमें इक्वेशन मिली है, आप देख रहे हैं नई इक्वेशन है 1 प्लस d²y/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में कहीं फ्रैक्शनल पावर नहीं है। अब हम डिग्री बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये देखना होगा व्हाट इज़ द हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, y को मैक्सिमम कितनी बार डिफ्रेंशिएट किया हुआ है 2, तो इसी की होल पावर आप देखेंगे क्या है, तो इसकी होल पावर क्या है 1। इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है और ऑर्डर क्या है 2, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार, इसलिए ऑर्डर कितना हो गया 2। और d²y/dx² की होल पावर कितनी है 1, इसलिए डिग्री क्या हो जाएगी 1। You can see as the number of highest derivative is 2, so order is 2, and the power of highest derivative is 1, so degree is 1. So I think each of you comes to know how can we tell about order and degree of differential equation. Second example, here are some examples. Find order and degree of differential equation and also whether these differential equation are linear and non-linear. तो एक बार दोबारा बता देती हूँ, लीनियर का मतलब है कि y और y के डेरिवेटिव सभी की पावर क्या होनी चाहिए 1, और नॉन लीनियर क्या होता है y या y के डेरिवेटिव में से किसी एक की भी पावर जो है 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या बन जाएगा नॉन लीनियर। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम सबसे फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे a। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए 4 है, y को मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट किया हुआ है 4, तो इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया 4, और इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 6, तो डिग्री क्या हो जाएगी 6। तो a का आंसर है ऑर्डर 4, डिग्री 6, एंड इट इज़ ए नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों हो गया, बिकॉज सेकेंड डेरिवेटिव और फोर्थ डेरिवेटिव दोनों की पावर 1 से ज़्यादा है, करेक्ट, इसलिए ये क्या हो जाएगा नॉन लीनियर। नेक्स्ट बी पे आइए। बी पे आप देख रहे हैं d²y/dx² प्लस 5x dy/dx प्लस 7y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, डिग्री 1, एंड दिस इज लीनियर क्योंकि y और y के डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, सो बी का आंसर हो जाएगा ऑर्डर 2, डिग्री 1 एंड लीनियर। इसी तरह थर्ड पे आएंगे।
सी। अब थर्ड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव है 2, तो ऑर्डर हो गया 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर कितनी है 1, इसलिए डिग्री होगी 1, लेकिन यहाँ पे y की पावर 1 से ज़्यादा होगी, इसलिए ये क्या हो जाएगी नॉन लीनियर। क्लियर? नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरिएबल सेपरेबल। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल टू y by x बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यहाँ पे तो क्लियरली बोला गया है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, यानी यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं y और x, तो जितनी भी टर्म्स हैं y वाली वो एक साइड पे हो जाएंगी और x वाली दूसरी साइड पे। सो गिवन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब आप देख रहे हो डी वाई और y जो है dy के नीचे आ जाएगा, तो ये लेफ्ट साइड पे आ गया सारा। इसी तरह dx डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर ले गए तो ये क्या आ जाएगा dx अपॉन एक्स। अब इन दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट। वेरिएबल सेपरेबल में करना यही है, जो dy और dx है इनको सेपरेट कर दो, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड पे, उसके अकॉर्डिंगली उनके वेरिएबल भी सेपरेट कर दो। नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। गॉट इट? तो आप देख रहे हो दोनों साइड्स को हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट मीन्स इंटीग्रल के साइन लगा दिए। नाउ 1 ओवर y का इंटीग्रल होता है log y और 1 बाय एक्स का इंटीग्रल क्या होता है log x प्लस सी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी स्टेप्स इसके हार्डली 3 है। पहला स्टेप सेपरेट द वेरिएबल, सेकंड स्टेप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और थर्ड स्टेप में यू विल गेट द आंसर। टेक वन मोर एग्जाम्पल। क्वेश्चन इज solve the differential equation dy by dx equal to 1 plus y square upon 1 plus x square by variable separable. तो step 1 separate the two. Correct? Separate the same variable on one side and we get dy upon 1 plus y square equal to dx upon 1 plus x square. Next step integrating both sides. We apply integral on the both side, और अगर आपको याद होगा ये जो इंटीग्रल है दैट इज द इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x. So you will get tan inverse y equal to tan inverse x plus c. Here is your answer. So I hope you all comes to know what is a differential equation, what is types of differential equation, what is order, what is degree, and what is linear and non-linear, and lastly how can you solve a differential equation with the help of variable separable. Thanks everyone. Best of luck to all of you.